Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry and welcome to the lecture of alcohol, phenol and ether. In this particular lecture, we will discuss the physical properties of alcohol. So let us start the physical properties of alcohol. And this is very important thing, my dear students. This is very interesting thing. Clear? So let us start. First of all, alcohol is available in which physical state? First of all, you know that alcohol is available in liquid state. Liquid state. It is in the form of liquid. The first thing comes in our mind is solubility. Is what? Solubility. Before starting the solubility, I would like to explain you what is hydrogen bonding. So hydrogen bonding is very important for solubility. बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी के लिए. तो आइए समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है. ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दिस इन द 11th स्टैंडर्ड, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन, मेरी बात समझना, मैं क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन. आई एम टेलिंग व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन when make the bond with more electronegative element, the bond forms, it is considered as a hydrogen bonding. So let us start. Let's take one example, HF. This is simply covalent bond. Hydrogen has also shared its one electron, fluorine has also shared its one electron. Do you know that which element is higher electronegativity? Fluorine. So this sharing will partially drag towards the fluorine, and fluorine will acquire partially negative charge and hydrogen will acquire partially positive charge. If we are taking another hydrogen fluoride HF here, same thing happens here, partially negative charge, partially positive charge. So here this hydrogen acquires partially positive charge. So when partially positive charge hydrogen, so this positive charge will have attraction towards this negative charge, so it will form one bond, and this type of bonding is considered as what? Hydrogen bonding. Clear? This type of bonding is considered as what? Hydrogen bonding. Mostly hydrogen is forming the bond due to attraction. The bond forms between 15, 16 and 17 group element. Mostly 15, 16 or 17 group के element होते हैं. Is it clear, my dear student? Okay, so you understood that what is hydrogen bonding. क्या पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? देखिए OH है तो -2 डेल्टा प्लस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा. क्लियर? दूसरा पानी का मॉलिक्यूल HH, यह -2 डेल्टा है प्लस डेल्टा प्लस, बोथ हाइड्रोजन विल हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल. तो इन शॉर्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए नेसेसिटी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन. व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, माय डियर स्टूडेंट. अभी मेरा क्वेश्चन है कि अल्कोहल है, क्या अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं? क्या अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं? तो सी, अल्कोहल मीन्स व्हाट? ROH. So oxygen, hydrogen, oxygen will acquire partially negative charge and hydrogen will acquire partially positive charge. So yes, partially positive charge is there, so that's why that hydrogen can it will फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर? वो हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा. ठीक है. वैसे आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो उसे पोलर भी कहते हैं. तो अपना अल्कोहल क्या है भाई? पोलर है. अल्कोहल क्या होगा? पोलर. बट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ R ऑल्सो. कंप्लीटली पोलर नहीं कह सकते, बट ये OH ग्रुप क्या है, मैं ऐसा कह सकता हूं OH ग्रुप पोलर है. ठीक है. OH ग्रुप क्या है? पोलर है. तो अभी कोई भी कंपाउंड पानी में जनरली डिसॉल्व क्यों होता है? तो आयनिक कंपाउंड तो सारे डिसॉल्व हो जाते हैं, बट ये अल्कोहल होता है तो अल्कोहल पानी के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है. एंड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर. आपने देखा होगा कोई भी अल्कोहल लो, वो पानी में क्या होता है? सॉल्युबल होता है. ठीक है. तो क्या होता है, अब आइए देखते हैं कि भाई एक अल्कोहल लिया हमने, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना देगा? इधर -2 डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा. तो ये क्या बना देगा दोस्तों? आप आराम से कह सकते हो कि इट विल फॉर्म व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर. अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर में कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं. बट अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें, क्लियर,
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, तो CH3OH की पहले बात करते हैं। तो CH3OH इज मिथेनॉल। तो मिथेनॉल इज हाईली सॉल्युबल, मिथेनॉल इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। यस, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड तो फॉर्म करेगा, बट उसमें भी थोड़ा वेरिएशन है। क्यों है मैं दिखाता हूं। अभी बात करते हैं इथेनॉल की। तो CH3CH2OH इथेनॉल, तो इथेनॉल क्या होगा, वो भी एक हाईली सॉल्युबल अल्कोहल है। फिर हम प्रोपेनॉल लेंगे, CH3CH2CH2OH, तो क्या होगा, तो प्रोपेनॉल हाईली सॉल्युबल रहेगा नहीं, वो सिंपल सॉल्युबल रहता है, हाईली सॉल्युबल नहीं है। इट मींस जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं, जैसे CH3CH2CH2CH2OH जो है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम होती जाती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम होती जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो रीजन ये है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो पोलर होता है वो हमेशा पोलर में डिसॉल्व होता है, पोलर होता है वो पोलर में डिसॉल्व होता है। तो यार अल्कोहल का ये पोलर पार्ट है, एंड पानी अपना वाटर, तो वो तो पोलर ही है। तो क्या होगा, अभी इधर देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है कार्बन वाला, उसे नॉन पोलर पार्ट कह सकते हो, ठीक है। तो ये इधर OH ही है एंड एक ही कार्बन है, तो इसलिए पोलर पोलर हाईली सॉल्युबल हो रहे हैं। इधर दो कार्बन है तो भी हाईली सॉल्युबल हो रहा है, बट जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं तो ये नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है बच्चों, नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है, इसलिए अभी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दिस इज अ सिंपल थिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्लियर। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ईथर जो है वो पानी में इतने सॉल्युबल है बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। चलिए मेरा क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूं, मैं सिंपल आपको पूछ रहा हूं, क्या ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, CH3OCH3 ये ईथर है, क्या ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो पहले तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने कंडीशन क्या बताया, ठीक है भाई, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज तो आएगा, बट इधर कोई हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो नो हाइड्रोजन विद कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे, सिंपल बात, ठीक है, क्लियर। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। अभी इसमें ऐसा भी कह सकते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एज द नंबर ऑफ OH ग्रुप विल इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है बच्चों, वो आपको भी पता है। हमने एक सिंपल एग्जांपल में देखा था, CH3CH2OH लिया था, इथेनॉल लिया था, हमने ये इथिलीन ग्लाइकोल लिया है CH2CH2OH, जिसे इथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं, IUPAC नेम होता है इथेन 1,2 डायोल। एंड हमने लिया था ग्लिसरॉल, आपको पता है CH2OH, CHOH एंड CH2OH। तो ये ग्लिसरॉल है, ये इथिलीन ग्लाइकोल है, ये इथेनॉल है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, इसकी है, क्योंकि इधर OH ग्रुप ज्यादा है तो ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, आपको पता है, इधर HOH होता है, इधर CH होता है, इधर OH। इट मीन्स बहुत सारे हाइड्रोजन आते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो सकते हैं, एंड ड्यू टू दैट ग्लूकोज आर सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज अ सिंपल थिंग। ओके, इट मीन्स जैसे जैसे नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी में ये एक मेन रोल पार्टिसिपेट करेगा, वो है आपका सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अभी सॉल्युबिलिटी के बाद हम क्या देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो आइए इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट अभी समझ लीजिएगा, आपको करना क्या है, जैसे अगर AA के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको उसको अलग करके AA फॉर्म में अलग अलग करना है, AA फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसे ही क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो एनर्जी आप किसके फॉर्म में देते हो, हीट के फॉर्म में देते हो। उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ होते हैं वो दूर हो जाते हैं, सिंपल बात, क्लियर। उनके बीच में हमें स्पेस इंक्रीज कर रहा है, तभी जाके वो लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट होगा, सिंपल बात है। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ क्या देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। क्यों एनर्जी, क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कम करना होता है, उनको दूर करना होता है, उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। ओके, तो अभी मैं सिंपल कहूंगा आपको कि जो इथेनॉल है CH3CH2OH है, एंड मेरे पास ईथर है CH3OCH3,
पहले तो आप देख सकते हो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देख सकते हो C2H5OH है, इधर भी C2H5OH ही बन रहा है, सॉरी C2H5OH, यस ओके, इधर भी 6। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। कौन से आइसोमर्स है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप अलग है, इधर OH है इधर O है। तो अभी मुझे बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो मैं डेफिनेटली कह पाऊंगा कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ईथर से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है दोस्तों। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है, उसको और अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता है। तो ईथर का जनरली हम इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो 78 डिग्री सेल्सियस जितना होता है, एंड डाइमिथाइल ईथर का 40 डिग्री सेल्सियस जितना होता है। ये डिफरेंस खाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो ये आपने समझ लिया। फिर अगर सेम कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन के साथ इसको कंपेयर किया जाए, तो अगर मैं ले रहा हूं इथेन और इथेनॉल, तो इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो आप सिंपल कह सकते हो इथेनॉल का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यार इथेन है, उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म हो रहा है, बल्कि इथेनॉल में तो OH है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। ड्यू टू दैट रीजन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। अभी इसमें क्या होगा? तो इसमें हम सबको पता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, मैं जो बता रहा हूं ध्यान रखना, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो मैं बात कर रहा हूं CH3 CH2OH की, एंड दूसरी बात कर रहा हूं CH3 CH2 CH2OH। तो इधर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्लियर, कंपेयर टू इथेनॉल। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ रहे हैं, तो उनको अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो सिंपल आप याद रखना ये रूल, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। फिर हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। इट मीन्स हम बात करते हैं, चलिए ले लेते हैं आपके लिए, आपकी कन्वीनियंसी के लिए, हमने ब्यूटेन 1 लिया, पेंटेन ही ले लेते हैं। चलिए, तो पेंटेन 1 लिया, 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 लिया, एंड इधर ओके ये कंपाउंड लिया। तो ये तीन कंपाउंड में से सब में आप देख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब सेम है। तो फर्क क्या है? तो फर्क है भाई सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं प्राइमरी का ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, बट सरफेस एरिया देखना पड़ेगा हमें। सेम नंबर ऑफ कार्बन हो तभी ये रूल एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है? ये ऑलरेडी हमने आगे हेलो अल्केन हेलो एरिन में देखा हुआ है ये रूल, तो इसलिए इसमें मैं डिटेल में नहीं जाता। सरफेस एरिया क्या अफेक्ट करता है ये ऑलरेडी हमने समझा हुआ है। इन शॉर्ट ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करती है? अफेक्ट करती है। मेनली ये चीजें हमें याद रखना पड़ता है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो इधर कि बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एंड सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा, सिंपल बात है, ठीक है बच्चों? तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, एंड इसके ऊपर से कभी कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो फटाफट से इसको याद करो, इसका स्क्रीनशॉट लो एंड इसे प्रिपेयर करो, ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू सो मच।